very warm welcome to all. Emerging modes नाम का एक छोटा सा चैप्टर है जो हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था लास्ट सेशन और ऑलमोस्ट 60% हो भी गया था because the chapter is very small and a simple one. ऐसा नहीं कि एग्जाम वाइज इम्पोर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट बट इट इज वेरी सिंपल एक्सेप्ट दिस पार्ट जो अभी बाकी है, दैट इज आउटसोर्सिंग, need for outsourcing various modes like LPO, BPO, KPO, etc. Highly technical things, but again a very logical basic concept we will discuss. But before that, let's do two distinguishes, that is e-business and traditional business. The difference between e-business and traditional business. थोड़ा recap कर लेते हैं. We'll do a short recap of the previous concepts which we have discussed in the last session. E-business, if you do your entire business operations through electronic mode, this is called as e-business. If only distribution takes place, that is placing an order or receiving the order takes place through the online channel or electronic channel, then it is called as e-commerce. E-commerce is a subset or a branch of e-business. तो e-business बड़ा है, e-commerce छोटा है. फिर हमने किए थे वेरियस डायमेंशंस, B2B, B2C वगैरह वगैरह. अगर याद होगा तो बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में है तो B2C, दो बिजनेस फर्म्स के बीच में है तो B2B, कंज्यूमर कभी कभार बिजनेसेस को अप्रोच करता है, then C2B is the model. Then sometimes it is B2A, which means business to administration, like government departments, ROC वगैरह वगैरह. And sometimes we as a consumers, we have normal common men, have some connections with administrative bodies to obtain passport or Aadhaar card. वो एक हो गया था. These are the dimensions, various. आगे हमने किया था various steps. So you'll have to register with the seller's website. It is a one-time registration. Shopping cart को add कर दो, then you can place an order. Placing an order, then payment is done. And what is payment? Payment includes various modes like debit card, credit card, internet banking, COD, cash on delivery. Cash on delivery means when you receive the order, you are supposed to pay, and you can pay either through cash or to debit card. वहाँ पे भी debit card का option हो सकता है, debit or credit card. Then digital cash was one of the modes of payment. What is digital cash? Cash that exists only in cyberspace. E-wallets you can see. Okay, then एक छोटा सा flowchart था, that is very simple, no need to revise as such. अभी कर लेते e-business and traditional business. What is traditional business? और इसके बाद पहले how can I forget? एक advantages and disadvantages of e-business था. Was also very simple. 24/7 फैसिलिटी मिलेगी, ग्लोबल एक्सेस होगा, पेपरलेस होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगी, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, पर्सनल टच इज मिसिंग, राइट, फ्रॉड के चांसेस होते हैं, डेटा इज लीक, राइट, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, एक्सेट्रा. देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइल अ सूट आल्सो, as it is difficult to trace the owner, trace the seller, original company owner. Let's start the distinguish. E-business, easy to form. Traditional business, very difficult to form. The procedure is complicated. Cost, e-business obviously nominal, website का charge कितना होगा. Physical obviously cost will be high. Risk, high risk is involved as there is no direct contact between the parties. Less risk, personal connection is there, interaction is there, sorry. Scope of business, e-business covers the entire world. Traditional business is limited to a particular area. It is not possible, right, कि हम लोग without electronic mode physically business ज़्यादा दूर तक operate कर सकें. Customer interaction, e-business में it is not possible. Physical business में it is possible. Physical inspection,
cannot inspect the goods physically, वहाँ पे physical inspection is possible. Resources focuses. E-business resources focus on demand side, कितना होगा वो? Traditional business on supply side. Delivery goods, e-business delivery of goods takes time. Traditional usually do not take time. Usage, valuable time and money को बचाता है. It used to save valuable time and money. It is an ancient still usage where the digital network is not reachable. जहाँ पे digital network possible नहीं है वहाँ पे तो भाई traditional business ही चलेगा. It is available round the clock during the limited time. Obviously, scope. Obviously, more business can be done easily without any hassles. Hassles means disturbance or obstacles. रुकावट. यहाँ पे रुकावटें थोड़ी ज़्यादा होंगी. So there are 11 points और बहुत simple points है. So I advise you to cover maximum points. At least 8-9 points तो चाहिए ही चाहिए. 11 points करने की जरूरत नहीं because 5 marks के लिए question है. So if the question is asked for only 5 marks, it doesn't make any sense कि 11 points लिखे, लेकिन 8 to 9 points cover कर लो because all points are very small. तो time ज़्यादा नहीं जाएगा. The next question, I guess, yes, second part, second question, e-commerce and e-business. I repeat, e-commerce is a smaller term, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना points है? नहीं, 6 points are there. 6 के 6 लिखना है. Commercial transactions इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होते हैं. पूरा बिजनेस प्रोसेस बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा. सबसेट ऑफ ई बिजनेस, तो ई कॉमर्स इज अ टाइप और पार्ट ऑफ ई बिजनेस. फीचर्स just involves buying and selling of products. All kinds of resale, everything is done through electronic mode. Concept narrow, broader. Transaction more appropriate in B2C context. Flipkart, example लिख देना. Flipkart, Amazon, it is used in the B2B transactions. Monster Jobs, Naukri.com, ये भी B2B के examples हो सकते हैं. Just Dial could be the example of B2B transactions. Wherein Naukri.com में ऐसा रहता है कि I'll supply, suppose I am handling Naukri.com. यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स बैचलर्स जिनको जॉब चाहिए वो अपना सीवी यानी कि रेज्यूमे अपलोड करते हैं, बायोडेटा जैसा समझो. मेरे पास बहुत लोगों का डेटा आ जाता है, तो उसमें शॉर्टलिस्ट करके मैं कंपनीज को डेटा प्रोवाइड करता हूँ, द बेस्ट कैंडिडेट्स का डेटा डिपेंडिंग अपॉन जॉब रिक्वायरमेंट्स. तो ट्रांजैक्शन बिटवीन मी एंड कंपनीज इज B2B. कंपनी विल पे मी सर्टेन अमाउंट क्योंकि उनको बिना मगजमारी के, बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के क्वालिटी कैंडिडेट्स का डेटा मिल जाता है. तो वो भी एक B2B का मॉडल है. Naukri.com, Monster Jobs, TimesJobs.com, ये सब वेबसाइट्स है जो जॉब्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं. इनका इंटरेक्शन होता है कंपनीज के साथ. Which network is used? E-commerce involves mandatory use of internet. चाहिए. यहाँ पे इंटरनेट होना जरूरी नहीं है. इंटरनेट इंट्रानेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में होता है. बिजनेस लाइन में इंटरनेट होता है. एक्स्ट्रानेट जरूरत भी नहीं है. नहीं करोगे तो भी चलेगा. इंटरनेट विदाउट इंटरनेट के थ्रू भी चल जाएगा. एक्स्ट्रानेट मतलब विदाउट इंटरनेट. बीपीओ एंड एलपीओ, वापस बोल रहा हूँ, इंटरनेट मतलब विद इन अ बिजनेस. इंटरनेट मतलब बिजनेस एंड कस्टमर्स के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए तो पॉसिबल. एंड एक्स्ट्रानेट मतलब इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है कभी कभार. एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड. इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट. नेक्स्ट पार्ट इज बीपीओ एंड केपीओ. ये ऑलरेडी मतलब ये पार्ट ही नहीं हुआ है अपना पढ़ के, तो अभी ये पार्ट नहीं करते. वी विल कीप अ सेपरेट लेक्चर ऑन आउटसोर्सिंग. वी विल कीप अ सेपरेट लेक्चर ऑन आउटसोर्सिंग. फिलहाल सिर्फ आउटसोर्सिंग का मीनिंग समझ. कीप अ सेपरेट लेक्चर ऑन इट जहाँ पे हम लोग बीपीओ, एपीओ, केपीओ, एलपीओ की बातें करेंगे इन डिटेल. बट वो सम अदर लेक्चर बिकॉज एनीवेज जो पहला पार्ट है उसका और आउटसोर्सिंग का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं. Still, for the time being, आज के लेक्चर में we will discuss the concept of outsourcing. What is outsourcing?
and then we will revise it in the lecture wherein we will discuss in detail what is BPO and what is LPO and what is KPO. Outsourcing, giving your task to some other organization, giving some of your tasks to some other organizations. I'm not going to cover from the book. मैं अपना एक explanation तुमको देने वाला हूँ, and we will keep a separate lecture, probably सारा OCM का syllabus, उसी का syllabus होने के बाद, before we start management. I want to link outsourcing वाला part to the management वाला part. That is why I skip outsourcing वाला part for this session. तो I completely remember कि 5th chapter में से outsourcing is left, so we will cover when we are on the verge of getting we are on the verge of starting management वाला part. तो management का part करने से पहले we will do outsourcing. I feel that it is directly have linkage to management. Now what is outsourcing? एक बार basic meaning खाली समझ, एकदम सिंपल मीनिंग से समझते हैं. घर का काम होता है बर्तन वगैरह मांजने, ये काम तुम्हारा होता है, मतलब तुम्हारे मम्मी डैडी या तुम दोस्त जॉइंटली समझ लो, सबका होता है. लेकिन ये हमारा मेन काम नहीं है. अगर हम इस पे ज्यादा ध्यान देने लगेंगे या कुछ फालतू काम में ज्यादा ध्यान देने लगेंगे तो अपना कोर मेन जो काम होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेन शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा. तो विल आउटसोर्स दैट एक्टिविटी टू समवन एल्स. वी मे, आई मीन सब लोग नहीं करते, सो हम लोग भाई को ये काम दे देते. सर ये क्या एग्जांपल दे रहा हूँ? दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल्स ऑफ आउटसोर्सिंग. टू फोकस ऑन आवर कोर वर्क, we outsource or we give some non-important work to some external person or external agency. That is called as outsourcing. अभी पेपर में obviously हमको बाई का एग्जाम्पल नहीं कवर करना है, but need to cover the concept. And what is the concept? Non-core activities. Non-core activities मतलब non-important activities को हम किसी बाहर के external organization के थ्रू करवाते हैं, and the process is known as outsourcing. कॉलेज में कैंटीन होता है, कॉलेज कैंटीन नहीं संभालता, एक कोई कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो ये सब काम देखता है, क्योंकि कॉलेज अपना कोर वर्क के में फोकस करे. कॉलेज का मेन काम बच्चों को खाना खिलाना ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन कैंटीन तो होना चाहिए ना सर, बिल्कुल होना चाहिए. तो कैंटीन का काम किसी बाहर वाले को आउटसोर्स कर देते. आई होप यू आर गेटिंग मी. हॉस्पिटल्स भी अपने कैंटीन का काम किसी और को दे सकते हैं. वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज को कॉल सेंटर्स को आउटसोर्स कर देते हैं. कॉल सेंटर्स वगैरह बीपीओ केपीओ क्या है, फिलहाल के लिए नॉन इम्पोर्टेंट बिजनेस वर्क को बाहर आउटसोर्स किया जाता है, दैट इज नोन एज बीपीओ. लीगल वर्क को आउटसोर्स किया जाता है, दैट इज नोन एज एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. एंड कुछ स्टैटिस्टिक्स डेटा वगैरह अगर चाहिए, इंडस्ट्री नॉलेज चाहिए, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क दिया जाता है कि हमको ये नॉलेज वगैरह दे, तो दैट इज नोन एज केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बट आई स्टिल से कि आज के लेक्चर में नहीं करेंगे. मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक आउटसोर्सिंग ऐसे समझेंगे कि आउटसोर्सिंग इज अ सेपरेट चैप्टर. और अस आउटसोर्सिंग इज अ सेपरेट चैप्टर. तो इमर्जिंग नोट्स में हम कंफ्यूज नहीं करेंगे उसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट वी विल कीप अ सेपरेट लेक्चर एज इफ दिस इज अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड आउटसोर्सिंग. इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस. इसमें से कुछ पार्ट है जो बोर्ड ने कट करवा दिया है. इसमें से कुछ पार्ट है जो बोर्ड ने कट करवा दिया है. वो कट वाला पार्ट ऑब्वियसली
सिर्फ मीनिंग कर लेंगे उसका, ऑब्वियसली मैं कवर कराऊंगा, बट इन डिटेल नहीं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज लास्ट से स्टार्ट करते हैं. लास्ट 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 लास्ट. यस, मैं थोड़ा अभी चेंज कर रहा हूँ ऑर्डर. I'm going to change the sequence. Why? एक तुम लोग को अल्टीमेटली सिलेबस कंप्लीट होने से मतलब है, राइट? I want to cover this part first. No, business ethics is skipped, huh? Yes, this is the main part. CSR, corporate social responsibility. This is very important. What is CSR? There are certain companies जिनके लिए सोशल वर्क करना कंपलसरी बोला है. उनके प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उनको सोशल एक्टिविटीज पे खर्चा करना ही पड़ेगा. Not all companies, not all companies. There are certain companies, certain big companies. That is called as CSR, corporate social responsibility. It is a compulsory model. नहीं तो क्या डोनेशन करो नहीं करो, जबरदस्ती थोड़ी है. मोदी जी बोलते हैं पीएम केयर्स फंड में पैसे जमा करो अपनी इच्छा से, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है. आपको नहीं करना है नहीं कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि करना ही चाहिए. भाई हमारे खाने के वादे, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, तो हम कहाँ से डोनेट करें? वैलिड है ये हमको. we can afford to donate, but we don't want to donate. No one can compel you. But there are some big companies जिनको ये कंपल्शन है. 2% of average net profits खर्चा करना ही पड़ेगा. Now 2% किसका एवरेज नेट प्रॉफिट क्या होता है, कौन सी कंपनीज है, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बस अब यही होगा और आज के लेक्चर में. We will discuss only corporate social responsibility. That's it. It is a new concept. It is not a new concept actually. उन्होंने ये बोला है, बराबर है ना. सोशल वर्क थोड़ी नया कॉन्सेप्ट है, पुराने जमाने से चला आ रहा है. टाटास तो कब से कर रहे हैं, लेकिन कंपल्सरी जो हुआ है CSR, वो बड़ा नया कंसेप्ट है. However, the MCA, Ministry of Corporate Affairs, ये कंपनीज को रेगुलेट करने वाला मिनिस्ट्री है. गवर्नमेंट ऑफ निर्मला सीतारामन जी इनकी हेड है, वही फाइनेंस मिनिस्टर है, वही MCA की मिनिस्टर सेम ही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली नोटिफाइड सेक्शन 135, इंपॉर्टेंट है, 2013 along with the company CSR rules 2014. I advise you दोनों याद रखो. कंपनीज एक्ट 2013 ये लास्ट ईयर भी हुआ था तुमको, उसका सेक्शन नंबर 135. और कंपनीज के CSR पॉलिसी रिलेटेड रूल्स है. एक बार समझ लो कि क्या होता है, एक्ट और रूल्स में क्या फर्क होता है. एक बार सुन लो खाली. एक्ट का प्रोसीजर कुछ ऐसा है, पहले बिल बनता है, बिल. CA सुना होगा, CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. ये क्या होता है, पहले बिल बनता है, बाद में एक्ट बनता है. पहले एक ड्राफ्ट बनता है जिसको बिल कहा जाता है, वो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में पास होता है विथ मेजोरिटी. फिर बाद में उसके ऊपर प्रेसिडेंट का थप्पा लगता है, एसेंट, प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर आने के बाद वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? ये कुछ बिल एंड एक्ट का बेसिक रूल. सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है अपनी इच्छा से. ये TDS प्रोसीजर नहीं होता, लोकसभा में पास करो, राज्यसभा में पास करो. सीधा जो रूलिंग गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल बीजेपी है, तो बीजेपी अपने हिसाब से वो रूल्स बना सकती. सो CSR के रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन एक्ट में अगर कोई चेंज करना है तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए. बड़ा मगजमारी वाला काम है एक्ट बनाना. ओके, CA के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते, बिकॉज हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है. मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था क्योंकि तुमने लेटेस्ट में CAA या CAB सुना होगा. पहले CAB था, कैप, और फिर बाद में CAA बन गया, बिकॉज बिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्ट. रामनाथ कोविंद जी का सिग्नेचर आ गया प्रेसिडेंट, और फिर वो एक्ट बन गया.
which makes it mandatory from 15th April 2014 for certain companies who fulfill the criteria to comply the provisions related to CSR. क्या है ये सर, कर लेते हैं, पता चल जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। मीनिंग क्या है CSR का? कंट्रीब्यूट टू सोशल ग्रुप है, तो यू कैन गिव योर ओन मीनिंग। मीनिंग वर्ड टू वर्ड बात मत करना, जरूरी भी नहीं है। और आगे डेफिनेशंस दिया है ना, ही वो भी नहीं है, खाली मीनिंग कर लेना। क्या है यूनिडो, क्या है यूनाइटेड नेशंस, फिर ISO, कितना लंबा चौड़ा दिया है, कोई जरूरत नहीं है। तुमको ना 135 याद रखना है, एक्ट, क्योंकि ऑलरेडी आंसर इतना लंबा है कि डेफिनेशन करने का जरूरत ही नहीं है, फिर बाहर क्यों करोगे। और वो एक्ट का डेफिनेशन होता तो मैं सामने से बोलता कि नहीं, करना ही पड़ेगा। यस, बट आगे का पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मत छोड़ना। डेफिनेशन यू कैन डेफिनेटली स्किप। इनका मैं तो बोल ही रहा हूँ कि देखो भी मत, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ CSR। लेकिन ये वापस है ना एक जगह पे आने वाला है। एक वेट, बड़ा मगजमारी वाला पार्ट दिया है। नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, स्कोप ऑफ CSR। फर्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी। तो मैंने बोला था ना कि कुछ कंपनीज को अप्लाई होगा। विच कंपनीज जिनका नेटवर्थ, व्हाट इज नेटवर्थ? शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, प्रॉफिट मिला के, शेयर कैपिटल और पिछले साल के प्रॉफिट्स वगैरह मिला के जो टोटल आती है उसको नेटवर्थ बोलते हैं। कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स का जो भी रिजर्व रखा है, वो रिजर्व रखा है 1500 करोड़ रुपया है, बड़ी अमाउंट और मोर, उससे ज्यादा है। टर्नओवर, व्हाट इज टर्नओवर सर? नेट सेल्स, हाँ, प्रॉफिट नहीं है। 1000 करोड़ और मोर, या नेट प्रॉफिट्स 15 करोड़ या उससे ज्यादा। नेट टर्नओवर मतलब सेल्स, नेट सेल्स, उसमें से अगर कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। तो तुम्हारा प्रॉफिट 15 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, नेटवर्थ 1500 करोड़ या उससे ज्यादा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर, shall be required to constitute CSR committee। तो तुमको सोशल वर्क करना पड़ेगा और you are supposed to appoint a CSR committee। ऐसी कमिटी जो देखेगी कि बराबर स्पेंडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। एक और बात, CSR कमिटी अपना रिपोर्ट बनाएगी कि कितना खर्चा हुआ है, कौन से एक्टिविटीज पे हुआ है, और वो रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच कर देंगे। व्हाट इज बोर्ड रिपोर्ट सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुना होगा, को शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है अबाउट कंपनी और उन्होंने क्या काम किया है, उसके साथ CSR रिपोर्ट भी जमा करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2% मैंने बोला था एवरेज नेट प्रॉफिट। सर व्हाट इज एवरेज नेट प्रॉफिट? लास्ट 3 साल का एवरेज निकालेंगे प्रॉफिट का, बहुत सिंपल है। 3 साल का टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3। ओके, जो भी आएगा वो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा, उसका 2% तुमको खर्चा करना पड़ेगा कोई भी सोशल एक्टिविटीज पे, तुम जो चाहो। एजुकेशन पे खर्चा करो, स्कूल एजुकेशन वगैरह, हैंडीकैप लोगों पे खर्चा करो, थर्ड जेंडर्स वालों के खर्चा करो। ये मैं पॉपुलर बोल रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर। पानी वगैरह से वाटर के रिलेटेड है, वो उसके ऊपर ज्यादा हो रहा है। टॉयलेट्स बना दो, पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक सैनिटेशन के ऊपर, सैनिटेशन के बाकी जो चीजें पैडमैन वगैरह देखा होगा, उसमें सैनिटरी पैड्स वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब भी कंपनीज काम करते हैं। 2% वगैरह इसके ऊपर जो फ्री में दे देते हैं। सोचो कितना फायदा होगा, 2% भी देखो ना। फार्मिंग के रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, कुछ नया ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह सुने होंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज है वहां पे कॉर्पोरेट्स स्पेंड कर देते हैं और ये बहुत फायदा होता है। जबरदस्त मूव है, बहुत अच्छा मूव लेके आए बीजेपी गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने स्टार्ट कर दिया था। इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, क्योंकि अगर कांग्रेस ने स्टार्ट किया होता तो बीजेपी बंद कर सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं है।
लॉ मेकर से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका डायरेक्ट पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, जो काम किया वो अच्छा किया है। चलो अगर दे भी दे क्रेडिट सरकार को, तो भी काम किया है वो अच्छा किया है, दोनों गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर काम अच्छा किया है। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, पॉलिटिकली न्यूट्रल पर्सन। All companies shall spend in every financial year at least 2% of the average net profits made during the 3 immediately preceding, what is preceding? Previous financial years in pursuance of CSR policy. What is in pursuance of CSR policy? अरे बहुत सारे एक्टिविटीज है, तुम जिधर चाहिए उधर खर्चा करो, पब्लिक सैनिटेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हैंडीकैप पब्लिक के ऊपर, इकोनॉमिकली आई मीन वीकर सेक्शन विच मीन्स थर्ड जेंडर, विमेन के लिए भी कोई पॉलिसी लेके आओ तो भी चलेगा, चिल्ड्रन पॉलिसी चल जाएगा, बहुत सारे एक्टिविटीज दिए, जिधर खर्चा करना है खर्चा करो। जनरल एक्टिविटीज के बारे में आइडिया दे दिया उन्होंने, पब्लिक सैनिटेशन के ऊपर दे दो, सोशल ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ दे दो, बहुत सारा एक्टिविटी। फार्मर्स है सुसाइड करते ही रहते, सुना होगा, तो उनके भले के लिए कुछ कर दो। कुछ कॉर्पोरेट्स है जिन्होंने विलेजेस अडॉप्ट किए, छोटी छोटी विलेजेस है, गरीब फार्मर्स है वहां पे, तो विलेजेस को अडॉप्ट किया, मतलब फार्मर्स का जो भी खर्चा है वगैरह ये लोग दे देते हैं कंपनी। बहुत अच्छा है। अरे करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो एक्ट बोल रहे हैं कि कंपलसरी देना है, तुम्हारी इच्छा पे कुछ नहीं है। और 2% तो बहुत कम है, मैं तो बोलता हूँ 4 या 5% होना चाहिए था, एटलीस्ट 5% होना चाहिए था और मजा आ जाता बहुत सारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2% करते हैं। देयर आर सर्टेन कंपनी जो उसके ज्यादा भी कर रहे हैं, टाटा तो पहले से कर रहे हैं। टाटा फैमिली मतलब वो फैमिली नहीं है जो हम बात सोचते हैं, टाटा ग्रुप बहुत पहले से ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ये रूल चेंज होने की वजह से। उन्होंने तो सोचा होगा हम तो पहले से ही कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इन्फोसिस बहुत पहले से ही कर रहा है। इन्फोसिस है सॉफ्टवेयर कंपनी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज इन द सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर। विप्रो आईटी सेक्टर मतलब बहुत बड़ा कंपनी, पहले से कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता ये 2% हो गया। ओके तो लेकिन इससे बाकी बहुत कंपनीज है, तुमने देखा होगा नोटिस, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सीएसआर। इकोनॉमी पे, पब्लिक पे तो इम्पैक्ट होगा ही इसका, समाज पे तो फर्क पड़ने ही वाला है, प्लस कंपनी पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। कैसे मैं बताता हूँ। कुछ साल पहले तुमने एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेड एंड शोल्डर्स वगैरह वगैरह शैम्पू से, वो अनुपम खेर नाम सुना होगा, वो रेट टुक लो ऐसा रहता है। बोलते हैं इफ यू बाय, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, तो उसका हम 2% बच्चों के शिक्षा के लिए देंगे, शिक्षा अभियान। या विद्या बालन का एक ऐड था, कौन सा वो, निहार शांति हाशी मामला जो भी है, वो जो भी है, आंवला हाशी मामला नहीं, उधर क्रिकेटर, सॉरी निहार आंवला, तो वो 2% शिक्षा के लिए जाएगा, वो भी बोलती है ना व्हाट इट इज। ये कंपलसरी है, इसलिए 2% लोग खर्चा करेंगे ये लोग, और उसका एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। अभी बात समझो, अगर मुझे कोई ना कोई शैम्पू खरीदना ही है, मैं नहीं जानता सीएसआर वगैरह के बारे में, मैं कॉमन मैन हूँ, सिंपल सा आदमी हूँ, मुझे ये सब नहीं पता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, हाँ मुझे इसमें कुछ दिलचस्पी है, पर मैं एडवर्टाइजमेंट देख लेता हूँ कि ये 2% स्पेंड करेंगे, तो मतलब एक तो गुडविल बढ़ जाएगा कंपनी का कि अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात ये कि कोई ना कोई तो शैम्पू लेना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई शैम्पू मिलने से मतलब है, तो चलो यार वही ले लेते, उस बहाने अपना कुछ पैसा, इतने सारे पाप करते कुछ तो पुण्य मिले, तो हम वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो इन शॉर्ट सेल्स भी बढ़ेगा, रेपुटेशन भी बढ़ेगी कंपनी की। ये कंपनी को फायदा है सीएसआर का, पुण्य मिलेगा वगैरह वो सब नहीं है। हाँ नहीं तो बोलेगा पुण्य भी मिलेगा, पुण्य वगैरह कंसिडर नहीं कर रहे, मैं तो फाइनेंशियल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। एक तो गुडविल बढ़ेगा, दूसरी बात ये कि डेफिनेटली सेल्स बढ़ जाएगा।
द कंपनी शैल रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट बोर्ड्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे वो सेंटेंस दिया है तो ऊपर का यू कैन इग्नोर। A brief outline of the company's CSR policy including the overview of the projects। CSR पॉलिसी के प्रोजेक्ट्स है, उसके रिलेटेड पार्ट है। देखो, टू कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी, एवरेज नेट प्रॉफिट्स, नहीं, ये सब पार्ट करने की जरूरत नहीं है। यू डू ओनली एप्लीकेबिलिटी। सो ओनली स्कोप ऑफ सीएसआर इज इंपॉर्टेंट, देन डायरेक्टली गो टू सीएसआर कमिटी। जो पहले भी हुआ था वो भी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कर दिया था। सीएसआर कमिटी अपॉइंट करना जरूरी है, और सीएसआर कमिटी जो रिपोर्ट बनाएगी वो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विद बोर्ड रिपोर्ट से। तो ये तो पहले भी हुआ था, हाँ वही करना है। लेकिन हाँ, एक और बात, सीएसआर कमिटी का मीटिंग होना चाहिए ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार। फर्स्ट लाइन चेक कर लो, देखो, हु शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। साल में 2 बार सीएसआर का मीटिंग होना चाहिए कमिटी का। बस इतना काफी है, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। देखो, तो क्या करना है, सीएसआर कमिटी अपॉइंट करना पड़ेगा। किसको? वही रे, 15 करोड़ प्रॉफिट या उससे ज्यादा, 1000 करोड़ टर्नओवर या उससे ज्यादा। याद आया? वो सब कंपनी था ना, उनको सीएसआर कमेटी अपॉइंट करना कंपल्सरी। और जो सीएसआर कमेटी अपॉइंट करेंगे उनका मीटिंग होना चाहिए कमेटी मेंबर्स का, साल में 2 बार। और वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसमें एटलीस्ट 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैं बोलता हूँ ऊपर का कट कर दो, सीएसआर कमेटी यहाँ का इंपॉर्टेंट लग रहा है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, आई टेल यू लेटर। ये वापस एक बार प्रेजेंटेशन कर लेंगे, टेंशन मत लो। सीएसआर कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ 4 डायरेक्टर्स, मतलब उसमें 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी। हु शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, डिस्कस एंड रिव्यू सीएसआर एक्टिविटीज एंड पॉलिसीज, कि कहाँ पे खर्चा करना है, क्या स्टेटस है, कितना खर्चा ऑलरेडी हुआ है, एटसेट्रा। सीएसआर कमेटी विल रिकमेंड अ फॉर्मल सीएसआर पॉलिसी, कैसा बनना चाहिए, एक्टिविटीज, बजट वगैरह वगैरह, एंड एस्टैब्लिश ट्रांसपेरेंट मींस टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। वो ठीक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए, साल में 2 बार मिलने चाहिए, और किसको अपॉइंट करना जरूरी है वो। देन सीएसआर एक्टिविटीज, लिस्ट दिए, देयर आर 10 पॉइंट्स। ना हम पागल नहीं है कि पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड करेंगे, ना ना ना। देखो, एक तो बात है, सीएसआर एक्टिविटीज में फर्स्ट पैराग्राफ तो करना ही नहीं है, सीधा जाना है 1 to 10। तो ये भी सर बहुत भयंकर है, एक काम करते हैं ना, इसको हल्का फुल्का कर देते हैं। इसमें जो कीवर्ड्स है वो याद रखो, सो दैट क्या हो जाएगा, 10 के 10 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे डिटेल में। फर्स्ट, पॉवर्टी के ऊपर है। सेकेंड, एजुकेशन के ऊपर है। थर्ड, चाइल्ड मॉर्टेलिटी के ऊपर है, या चाइल्ड हेल्थ, चिल्ड्रन हेल्थ, चिल्ड्रन एंड मैटरनल हेल्थ। फोर्थ, एनवायरमेंट के ऊपर है। फिफ्थ, वोकेशनल स्किल्स, तो छोटा सा ही है। सिक्स्थ, आर्म फोर्सेस के लिए है, डिपेंडेंट्स के लिए। सेवेंथ, रूरल स्पोर्ट्स, नेशनल, ये तो पूरा लिखना पड़ेगा, उनके लिए है। माइनॉरिटीज भी उसमें आते हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए है, स्लम एरिया डेवलपमेंट के लिए। तो मेक अ वेरी स्मॉल सेंटेंस, 10 के 10 पॉइंट्स होने चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूँ, सीएसआर एक्टिविटीज में ऑल 10 पॉइंट्स यू शुड कवर, एक भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े पॉइंट्स है उनको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो किसके रिलेटेड पॉइंट्स है वो अपने को पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट पॉवर्टी रिलेटेड है, हंगर, पॉवर्टी एटसेट्रा, बस बात खत्म। सैनिटेशन भी है सर, उसमें सैनिटेशन का चाहिए तो अलग पॉइंट बनाओ, चलेगा, या पॉवर्टी वगैरह कर दो, सीधा चलेगा। सेकेंड, टू प्रमोट एजुकेशन, टू चिल्ड्रन मॉर्टेलिटी एंड हेल्थ एंड मैटरनिटी हेल्थ। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, खाली इतना याद रखो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? सस्टेन होना चाहिए, टिकना चाहिए देखा जाए तो, लेकिन इस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, अभी धीरे धीरे सुधर रहे। सर ये आगे का बताओ ना, फ्लोरा फौना क्या रहता है? ये पानी के जो होते हैं ना, फ्लोरा फौना, पानी में जो वनस्पति वगैरह होते हैं उनको फ्लोरा फौना बोलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा फौना, एनिमल वेलफेयर, समुद्र के अंदर जो
फिशेस और वनस्पति या प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा फौना में कैटेगराइज हो जाता है। एनिमल वेलफेयर है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री सर जंगल लेकिन जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बना है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सॉइल, एयर एंड वाटर। वन थिंग I like to tell you is there is a new concept. There is a new concept in India जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है लेकिन अभी इंडिया में आ चुका है या हो रहा है, and that is permaculture. उसके ऊपर CSR का स्पेंडिंग है। It is permaculture. It's a permanent culture. आता है एग्रो फॉरेस्ट्री में। I advise you to check the same. I advise you, I suggest you to do permaculture. पता चले कि दुनिया कहाँ आगे बढ़ रही है और कहाँ क्या चल रहा है, और बहुत कम लोगों को पता है। It's permaculture, which means permanent culture. That is nothing but nature based farming को, unnatural कुछ मत करो। एक ही पीस ऑफ लैंड पे सीधा चावल उगा दिया, गेहूं उगा दिए, नहीं चलेगा। बायोडाइवर्सिटी में बिलीव करना। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? एक ही जगह पे बैंगन लगा होगा, दूसरी जगह पे और कोई पेड़ पौधा होगा, तीसरी जगह पे और कोई पेड़ पौधा होगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री वो लोग बाकी सारे फॉर्म मतलब न्यूट्रिशंस देंगे। नेचर भी इससे मेंटेन रहेगा बिकॉज नेचर बिलीव्स इन द बायोडाइवर्सिटी। नेचर ऐसा नहीं करता कि एक जगह पे सारे पेड़ आ गए, एक जगह पे एक ही पेड़ आ गया या एक ही टाइप आ गया, ऐसे नहीं होता। वो बायोडाइवर्सिटी रखता है। सो जो नेचर का डिमांड से नेचर की जो थिंकिंग है वो समझना इज अ साइंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द नेचर सेज एंड दैट इज अ पर्माकल्चर, परमानेंट कल्चर। तो इसके ऊपर भी CSR हो रहा है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम कंपनीज इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बट दिस इज अ न्यू कांसेप्ट, यू शुड नो व्हाट इज पर्माकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो सबको पता है, सब जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का नेक्स्ट लेवल इज पर्माकल्चर, जो मुझे नहीं लगता पता है, लेकिन ये बड़ा मिशन है जो वेस्टर्न कंट्री से आ चुका है। एंड दिस इज अ गुड थिंग, दिस इज अ गुड थिंग। नहीं हम कॉपी करते हैं लेकिन ऐसी चीजें कॉपी करनी चाहिए, ऐसी चीजें सीखनी चाहिए। पर्माकल्चर बहुत बहुत जबरदस्त चीज है। बट ये मैं यहाँ से नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोई फार्मर नहीं हूँ कि मैं तुमको इन डेप्थ बताऊं। तुमको और अपना लेना देना भी नहीं है उससे डायरेक्टली। I think you should search on YouTube and you will get many videos on the same. तेलंगाना में ज्यादा हो रहा है, सदर्न पार्ट में ज्यादा हो रहा है, साउथ इंडिया में वो लोग ज्यादा अवेयरनेस उनमें है अबाउट नेचर एज कम्पेयर टू नॉर्थ। तुमने देखा होगा नॉर्थ में ज्यादा पोल्यूशन होता है, दिल्ली वगैरह में। गुजरात महाराष्ट्र में पोल्यूशन है बट कम है। जितना सदर्न पार्ट में जाओगे, साउथ कोंकण से लेके साउथ में कर्नाटक वगैरह, वहां पे पोल्यूशन कम होता है बिकॉज वो थोड़े ज्यादा कॉशियस है अबाउट नेचर, थोड़ा ज्यादा कंपेयर टू अदर्स। ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट है, वैसे भी नहीं है कि मैं कोई बायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ, फैक्ट है। कंपेयर टू नॉर्दर्न पार्ट, अपना वेस्टर्न पार्ट है वो अच्छा चल रहा है, ठीक है, बैलेंस है हम लोग। लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है सदर्न पार्ट, वहां पे ज्यादा चल रहा है। तो अभी तुमको शायद पता नहीं होगा, इट्स अ फ्यूचर, तो बाद में आ जाएगा। गुजरात में और महाराष्ट्र में भी इसके ऊपर चल रहा है काम, बट बहुत कम है, बहुत कम है। गुजरात में भी है कुछ फार्मर्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और साथ ही साथ पर्माकल्चर कर रहे हैं। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉइंग एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स है। वोकेशनल स्किल्स मतलब सर एम्प्लॉयबल स्किल्स। फालतू एजुकेशन, फालतू, आई कैन नॉट से फालतू, बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको स्पेसिफिक काम करना है, टेलरिंग में, प्लम्बिंग में, फार्मिंग में, ऐप मैनेजमेंट, ऐप मोबाइल ऐप्स वगैरह, उसके रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग, ये सब हमको स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए सर। उसके लिए वोकेशनल स्किल्स तो डेवलप करना पड़ेगा ना। और जिन लोग को स्कूल या कॉलेज का मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड, उन लोग के लिए भाई वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए सो दैट दे कैन बी एम्प्लॉयबल, दे कैन अर्न मनी
चोरी वगैरह इससे कम होती है, अल्टीमेटली फ्रॉड्स कम होते हैं, क्योंकि चोरी तब होती है जब लोगों के पास पैसा नहीं होता। यार ये वोकेशनल स्किल्स डेवलप करना बहुत काम की चीज है। तुमने देखा होगा इंजीनियर्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इंडिया सबसे ज्यादा इंजीनियर्स मैन्युफैक्चर करती है हर साल ऑल ओवर वर्ल्ड। सबसे ज्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस होते हैं इंजीनियर्स, लेकिन जॉब्स नहीं है बिकॉज एम्प्लॉयबल पार्ट नहीं है उनमें। उनके पास वोकेशनल मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स होने चाहिए। बुक का रटा रटाया ज्ञान रियल लाइफ में अनफॉर्चुनेटली ज्यादा काम नहीं आता, या तो मैं कहूंगा काम ही नहीं आता। Measures for the benefit of armed forces, veterans, war widows, and ये तो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, डिफेंस के ऊपर लोग ज्यादा सोच रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग ऑब्वियसली, उसके रिलेटेड भी तुम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन मैं बताता हूँ ना, कॉर्पोरेट्स कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस है। अभी डिफेंस पे खर्चा करेंगे ना तो कंपनी का गुडविल ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आजकल लोग पेट्रोइटिज्म का के बारे में ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, जाने दो, अच्छा है। मिलिट्री फोर्सेस वगैरह के ऊपर ज्यादा चल रहे हैं, मीम्स वगैरह भी उसके ऊपर ज्यादा चल रहे हैं, तो पब्लिक में ज्यादा अवेयरनेस है अबाउट, और ज्यादा सिंपैथी है, ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है अबाउट आर्म फोर्सेस। तो वहां पे खर्चा करो। अगर मेरी कंपनी होती है और मुझे प्योरली कमर्शियल सोचना है, प्योरली कमर्शियल, तो मैं इन पे खर्चा करूंगा और जबरदस्त पब्लिसिटी करूंगा टू इंक्रीज माय कंपनीज गुडविल। और मैं कुछ बुरा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं जो चीज कर रहा हूँ उसको बस दिखा रहा हूँ, मुझे पुण्य नहीं चाहिए। अपने धर्म ग्रंथ में वगैरह लिखते हैं, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे धर्म ग्रंथ में, उर्दू कुरान में भी है, गीता में भी, और बहुत जगह पे, कि डोनेट करो तो किसी को बताओ मत। एक हाथ से करोगे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे डोनेट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज फिलॉन्थ्रॉपी। द वर्ड इज कॉल्ड एज फिलॉन्थ्रॉपी। दिस इज नॉट फिलॉन्थ्रॉपी। ये सोशल वर्क नहीं है, नहीं है। एक तो ये रूल दिया है, रूल बोला इसलिए कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते भी है कि हम ये सब काम करते हैं। तो ये सोशल वर्क ऐसे देखा जाए तो है भी, और वैसे देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्टली कंपनी को बेनिफिट मिलता है। कोलगेट पामोलिव, कोलगेट पहले से डेंटल कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है, इसका कोलगेट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो पता नहीं, मतलब मैं एकदम छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ कि कोलगेट के डेंटल कैंप्स होते हैं, पता नहीं कहाँ पे होते हैं, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट में बताते जरूर है कि हम लोग डेंटल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उनको इतनी फॉरेन कंपनी है कोलगेट पामोलिव, उनको इतनी पड़ी है इंडियन लोगों के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उनको रेपुटेशन बढ़ाना है, और वो पैसा वो आराम से कोलगेट के एक टूथपेस्ट के ऊपर 1-2 रुपया एक्स्ट्रा डाल के वो पैसा रिकवर कर सकते हैं जो पैसा खर्चा किया। इट्स नथिंग फॉर देम, इट वाज नथिंग। अभी तो ठीक है, अभी तो कंपलसरी कर दिया है, तो ये सारे कंपनीज तो वैसे भी लीगल ऑब्लिगेशन में आ गए, लीगल ड्यूटी में आ गए। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, अगर तुमको स्पेसिफिक सेक्टर नहीं मिलता तो सीधा रिलीफ फंड में डोनेट कर दो, बात खत्म हो जाएगी। जो पैसा अल्टीमेटली बैकवर्ड एरियाज, माइनॉरिटी, सोशल ट्राइब्स के ऊपर खर्चा होता है, या तुम खुद चाहो तो भी सोशल ट्राइब्स पे खर्चा कर सकते हो, इट इज अलाउड। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यही आता है, फार्मिंग वगैरह सब कुछ। स्लम एरिया डेवलपमेंट भी अच्छा है। स्लम एरिया डेवलपमेंट मतलब सर स्लम्स को कन्वर्ट करेंगे एक बिल्डिंग में, ये रियल एस्टेट वाले करते हैं। वो भी एक रूल होता है, एसआरए सुना होगा। सो झोपड़पट्टी वालों को हटाना है, वहां से झोपड़ियों को हटाना है और वहां पे बिल्डिंग बनानी है, तो पहले वो जो झोपड़पट्टी वासी होते हैं उन लोग के लिए एसआरए का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, उनको एक बिल्डिंग बना के देनी पड़ती है, और उसके बाद में यू कैन यूटिलाइज द अदर स्पेस, वो जगह मिल जाती है तुमको, वो रूल है। वैसे ही कुछ कंपनीज भी होती है जो स्लम एरियाज को डेवलप करके देती है, लेकिन मेन पार्ट अगर इसमें कुछ है तो वो एनवायरनमेंट है, आई पर्सनली फील। फिर उसके बाद ऑब्वियसली चाइल्ड हेल्थ है, पॉवर्टी है, लेकिन पॉवर्टी वगैरह सब मैन मेड है, जो इंसान अपने पॉवर्टी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एनवायरनमेंट हम डैमेज कर रहे हैं अपने पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, विच इज रॉन्ग। लॉकडाउन का एक जबरदस्त एडवांटेज है, अभी एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम हो गया, कार्बन एमिशन कम हो गया। आई नीड टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स।
I need to discuss certain things. थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, but I need to discuss this. इस बहाने के एनवायरमेंटल पार्ट निकला है. इंडिया में we consume ऑक्सीजन और उसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ते हैं, CO2, कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट्स जो हम चेक नहीं करते. Small things we can incorporate in our personal life, जिससे एटलीस्ट अपने लेवल पे CO2 कम एमिशन हो मतलब बाहर निकले. दिस इज माय पर्सनल सजेशन. आई मीन और इसके ऊपर किसी को डिसएग्री करने का सवाल नहीं है कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो नहीं कर रहा. There is a name called Sonam Wangchuk. He's one of those persons जिन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे बॉयकॉट करने के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाया. This is one of those persons, those main persons जिन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर बॉयकॉट किया. तुमने भी शायद वीडियो देखा होगा. सोनम वांगचुक इज द रियल कैरेक्टर ऑफ 3 इडियट्स. रैंचो 3 इडियट्स में जो रैंचो आमिर खान का कैरेक्टर था, वो इंस्पायर्ड था इस कैरेक्टर से. सोनम वांगचुक इज देयर इन लद्दाख. Very educated person, and he utilizes his talent for the betterment of local persons, Ladakh local persons. He approaches, और पता नहीं क्यों इसको ही ज्यादा प्रमोट किया गया चाइनीज प्रोडक्ट्स के वीडियोस को, जबकि वो बहुत पहले से कुछ बोल रहे हैं. वो अप्रोच कर रहे हैं मासेस को. यू कैन चेक द वीडियो. मैं कुछ अपने खुद का नहीं ऐड कर रहा हूँ उसमें. Lead a simple life. You live simply so that we can simply live. अगर तुम थोड़ा सिंपल तरीके से जियोगे तो हम अच्छे से जी सकेंगे. कार्बन एमिशन जो कर रहे हो वो सिर्फ उसी एरिया पे इम्पैक्ट नहीं करता, वो पूरे कंट्री पे इम्पैक्ट करता. सो छोटी छोटी चीजें बोलते हैं कि अगर बाइक चलाने वाले हो नजदीक के डिस्टेंस के लिए, उससे अच्छा चलो. एनीवेज वो तुम्हारे लिए भी फायदा है. या साइकिल से ट्रैवल करो, कम्यूटेशन करो. अभी देखो कितना डैमेजिंग है वो. इफ यू डैमेज एनवायरनमेंट, अल्टीमेटली यू डैमेज योरसेल्फ. बाइक से जाओगे और चल के जाओगे, ज्यादा तुम्हारे हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है? चल के जाओगे तो तुम्हारा भी इसमें भला है और एनवायरनमेंट का भी भला है. ऑब्वियसली तुम अकेले नहीं सुधार सकते, लेकिन ऐसे एक लोग ऐड हो जाए तो एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट कम होगा, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा. हम अगली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा अच्छा, एटलीस्ट रेनेबल, सस्टेनेबल, कुछ तो थोड़ा बहुत ह्यूमन कंडीशंस रखे जीने के लिए. आई एडवाइस यू के इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते. आई एडवाइस यू यूट्यूब पे जाके ये सब वीडियोस यू कैन चेक. सोनम वांगचुक वगैरह. इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, बट इट्स माय सजेशन, इट्स माय हम्बल सजेशन टू ऑल ऑफ यू, सो दैट पता चले एटलीस्ट जो जितना कम यूज कर सको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, which is good for your health also. ऐसा नहीं है कि घर पैसा देना है, वो ये नहीं बोलते कि डोनेट करो. मॉनेटरी डोनेशन नहीं चाहिए उनको. You lead a simple life which will be useful for you as well as for them. Okay, there is a country called Bhutan. We measure our progress in GDP. सबने सुना है GDP based progress. Bhutan measures its progress in terms of happiness. They have their happiness index, gross happiness index. We don't measure our progress in happiness. देखो ना, इतना सारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, इतनी पॉवर्टी बढ़ रही है, और हम अभी भी जीडीपी की बात कर रहे हैं, which is a very wrong approach. We should learn something from a very small country जो अपना एजुकेशन सिस्टम हायर करती है. भूटान अपने एजुकेशन सिस्टम को बेस पकड़ती है, हमसे सीखती है, और हमको अभी उससे सीखने की कुछ जरूरत है. अगेन यू कैन चेक. भूटान के लोग जितना ऑक्सीजन लेते हैं उससे 3 गुना ऑक्सीजन छोड़ते हैं बाहर. सो इट इज अ कार्बन नेगेटिव कंट्री. हम पॉजिटिव है, हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ रहे, बहुत ज्यादा छोड़ रहे. वो ऐसा है कि जितना ऑक्सीजन ले रहे उससे मुकाबले नहीं है, उससे 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन बाहर जा रहा है. इट्स अ कार्बन नेगेटिव कंट्री.
हम इतना तो बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है इंडिया के लिए, लेकिन एटलीस्ट हम कार्बन एमिशन कम तो कर सकते हैं जितना कर रहे हो उससे। मतलब दिस इज सुपर। ये कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन तुम भूटान के देखोगे सब सीन सिनेरियोज वगैरह, तुमको घर से मिल जाएगा यूट्यूब पे वगैरह वीडियोस, पोल्यूशन वगैरह है ही नहीं, बट वो एक कॉस्ट पे करते हैं। उनके पास डेवलपमेंट इकोनॉमी में नहीं मेजर किया जाता, तो वो लोग इतने अमीर नहीं है, लेकिन वो लोग फिट है, वो लोग खुश है। सो वी शुड डिसाइड एंड योर यूथ। मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन तुम कल की पीढ़ी हो, जो तुम कल बड़े बनने, ऑब्वियसली तुम बहुत छोटे हो। सो तुम्हारा अप्रोच इज मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं तुम लोग से ज्यादा बात कर रहा हूँ। मैं और किसी से इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता, बट यहाँ पे रहा भी नहीं जाता। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। सोचो इसके बारे में, तुम्हारे लिए भी अच्छा है पर्सनल लेवल पे, और ऑब्वियसली कंट्री के लिए अच्छा है। दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर देशभक्ति, इंस्टेड ऑफ भारत माता की जय वगैरह। ये तो सब चलता रहेगा, ये सब करो, ये मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, लेकिन ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स है रे भाई, ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स है। असली अगर देशभक्ति चाहते हो तो डोनेशन वगैरह करो, ऐसे कुछ बुरी बात नहीं है, मैं भी करता हूँ जितना अपनी इच्छा हो, लेकिन इन एडिशन टू दैट पैसे की जरूरत नहीं है। लीड अ सिंपल लाइफ। बाइक का पेट्रोल भी कम लगेगा। अभी तुम्हारे पास बाइक नहीं है तो तुम चल रहे हो, बट मार्क वन थिंग फ्रॉम मी, जब बाइक आ जाएगी तो चलना भूल जाओगे, और फिर कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह सब डिसीजेस होते हैं। इट वाज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माइंड, रहा नहीं गया इसलिए बोला। कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो नहीं किया है, तो किसी को बुरा लगने का सवाल नहीं पैदा उठता। एक बात तो है कि पॉलिटिशियंस क्यों नहीं बोलते, सिंपल रीजन इज जीडीपी अगर बढ़ेगा तो एनवायरनमेंट सैक्रिफाई होगा, तो अगर जीडीपी बढ़ाना चाहते हो तो एनवायरनमेंट सैक्रिफाई करना पड़ेगा। जीडीपी बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हैप्पीनेस बढ़ना चाहिए। एनीवेज फॉरगेट अबाउट दैट, बहुत हो गया लेक्चरबाजी। एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं, यहाँ से नहीं करना है, ऑलरेडी हो चुका है 2%। नेक्स्ट, नॉन कंप्लायंस ऑफ सीएसआर। हाँ, ये नहीं हुआ था। व्हाट इज नॉन कंप्लायंस सर? व्हाट इज कंप्लायंस सर? रूल को फॉलो करना, रूल को फॉलो करना। सो व्हाट इज नॉन कंप्लायंस सर? रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? सो 135 में दिया है कि अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं करते सीएसआर पॉलिसी के, मतलब सीएसआर कमेटी अपॉइंट नहीं करते, या बोर्ड में या मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं करते, या 2% खर्चा नहीं करते वगैरह वगैरह, सो देयर आर पेनल्टीज टू यू। नॉट लेस देन 50,000, यू कैन चेक। 50,000 रुपया नॉट लेस देन, मतलब सर ये कंफ्यूज हो रहे हैं सर, ये लीगल लैंग्वेज है। नॉट लेस देन का मतलब मिनिमम 50,000 रुपया फाइन, मैक्सिमम 25 लाख रुपया फाइन। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट, मतलब जो ऑफिसर्स कंपनी के जो इस डिफॉल्ट में इन्वॉल्व थे, जिनकी वजह से ये डिफॉल्ट हुआ, जो इस डिफॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 years, 3 साल तक जेल है। 3 साल तक, हाँ, कम भी हो सकती है ऑब्वियसली। और उनको भी फाइन है 50,000 से लेके 5 लाख रुपया। कंपनी को ऊपर कौन सा फाइन था सर? उस ऊपर कंपनी के लिए था, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। कंप्लायंस नहीं किया, मतलब रूल्स फॉलो नहीं किए सीएसआर रिलेटेड, 50,000 रुपया मिनिमम, बाकी सब मत करो, सीधा नॉन कंप्लायंस में खाली फाइन याद रखो। मिनिमम 50,000 रुपया कंपनी के लिए, मैक्सिमम 25 लाख रुपया। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए सीधी बात है, इतना ही लिख लो नॉन कंप्लायंस के लिए। एक तो कंपनीज के लिए कितना है सर? मिनिमम 50,000 रुपया फाइन, मैक्सिमम 25 लाख रुपया फाइन। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए कितना? मिनिमम 50,000 रुपया फाइन, मैक्सिमम 5 लाख रुपया फाइन, और इम्प्रिजनमेंट। और विद बोथ, दोनों भी हो सकते, दोनों यूजुअली नहीं होते। दोनों तब होंगे जब बार बार डिफॉल्ट कर रहे हो, मस्ती चढ़ी है तुमको, बार बार डिफॉल्ट करते ही जा रहे हो, तो ऐसे केस में फाइन नहीं, जेल भी हो सकती है। या तो ऐसा होता है कि फाइन भरो या जेल में जाओ। ऑब्वियसली हम फाइन भर देंगे सर, चलेगा, हाँ तो ठीक है, फाइन भर दो। 2-3 बार हुआ तो दोनों लगा देंगे, ये नहीं चलेगा। कुछ लोग क्या बोलेंगे, एक ही पर्सन है, टर्नओवर तो ज्यादा है, तो पेनल्टी भर के हम लोग को सस्ते में निपट जाएंगे, तो मान लेंगे कि हम हमसे गलती हुई है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।
एक आध बार तुम ये कर भी लोगे, सेकेंड ईयर ऐसा करने जाओगे कि हम फाइन भर देंगे वो सस्ता पड़ेगा, नहीं, दोनों लगा देंगे, फाइन भी कर लेंगे, जेल में भी डाल देंगे। तो बोलो नहीं नहीं जेल में नहीं यार, ईमानदारी से 2%, इसीलिए 2% की है, बिकॉज मेनी कंपनीज आर फॉरेन कंपनीज, तो वो थोड़ी चाहेंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट हो, दिल से थोड़ी चाहेंगे, तो उन्होंने 2% ही रखा है ताकि वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना करे, ज्यादा प्रोटेस्ट ना करे। दैट्स इट, दिस इज सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, फिर बाद में लेक्चर इज ओवर। व्हाट इज सीएसआर, किसको अप्लाई होगा? तो एक बात समझो, कंपनीज एक्ट इसके ऊपर है, तो कंपनीज को अप्लाई होता है सेक्शन 135 प्लस सीएसआर अलग पॉलिसी है, रूल्स 2014। 15 अप्रैल वगैरह याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीएसआर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोसाइटी, वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, वेरियस स्टेक होल्डर्स। और स्टेक होल्डर्स वो कभी बाद में हो ही जाएगा। सीएसआर हाँ किसको अप्लाई होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपया, टर्नओवर 1000 करोड़ रुपया और प्रॉफिट 15 करोड़ रुपया, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो तुमको सीएसआर कमिटी अपॉइंट करनी पड़ेगी। और 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का, एवरेज नेट प्रॉफिट मतलब लास्ट 3 इयर्स का, प्रीसीडिंग वर्ड याद नहीं रहता नो प्रॉब्लम, प्रीवियस 3 इयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट्स निकलेगा, उसका 2% यू नीड टू कंट्रीब्यूट टू सम सीएसआर एक्टिविटी और एक्टिविटीज, एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज। सीएसआर कमिटी का रिपोर्ट बनेगा और वो बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करना कंपलसरी है। सीएसआर कमिटी साल में 2 बार मिलेगी, उसमें मिनिमम 4 डायरेक्टर्स होंगे बस। कुछ एक्टिविटीज दी है जहां पे तुम खर्चा कर सकते हो, उन एक्टिविटीज में से कोई एक एक्टिविटीज में, तेरा 10 एक्टिविटीज मैंने बोला था, एक एक दो वर्ड्स याद रख लो, सब में से चलेगा, बट कवर द स्पॉट्स। नॉन कंप्लायंस अगर हुआ तो कंपनीज के लिए 50,000 मिनिमम फाइन, मैक्सिमम 25 लाख रुपया फाइन। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए होगा 50,000 मिनिमम फाइन, मैक्सिमम 5 लाख रुपया फाइन और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स और बोथ। सो दैट्स इट फॉर सीएसआर, थैंक यू वेरी मच। आज यही पे रुकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।